ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟਰਸਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਵੀ ਗਿਡਵਾਣੀ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਵੀ ਗਿਡਵਾਣੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾयरी प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बहुत स्वागत है जी। मंजीत जी, थैंक यू सो मच जी शो पे बुलाने के लिए। एडमिंटन डायरी के सारे व्यूअर्स को प्यार भरी सत श्री अकाल। ਲਵੀ ਜੀ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ट्रस्टेड अकाउंटिंग टैक्स सर्विसेज को हो गए अबाउट 6 साल सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए बिजनेस और पर्सनल टैक्सेस से। बिजनेस टैक्सेस में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेरोल सर्विसेज, जीएसटी अकाउंटिंग सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज, कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकॉर्पोरेशन किसी क्लाइंट को नई कंपनी खुलवानी है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सीआरए से कोई डीलिंग होती है, कोई ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, सीआरए की कोई क्वेश्चंस होते हैं, क्लाइंट के बिहाफ पे हम डील करते हैं। पर्सनल टैक्सेस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल टैक्सेस जनरली साल में एक बार होता है जी, बट हर इंडिविजुअल को एक बार फाइल करना ही होता है तो उसकी सर्विसेज होती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस होती है और वेरियस अदर सर्विसेज। बिल्कुल जी, अगर आप वैसे भी गल करिए एवरेज कनेडियन ਨੂੰ टैक्स और अकाउंटिंग ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੜਨਾ ਹੀ ਪੜਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਵੀ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ कैनेडियन सिटीजन्स ਨੂੰ सपोर्ट किया है। बिल्कुल जी, मैं तो खुद कहता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि हम कनाडा में हैं। जितनी बेनिफिट्स कैनेडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है इंडिविजुअल्स को, कंपनीज़ को, हर एक टाइम से जब से शुरू हुई है अब तक प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए तो हैट्स ऑफ है जी। बिल्कुल जी, उन्होंने कोशिश की है भी कोई भी रह ना जाए, ਜਿਹੜਾ भी इंडिविजुअल रिक्वायर्ड आ, चाहे वो पहला असी इंप्लॉइज़ की गल करते सी, फिर सैल्फ इंप्लॉइज़ की गल की, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ कोविड की मार चल रहा है उन्होंने किसी न किसी तरीके नाल हेल्प की जाए। 100% जी। हर एक जैसे आप बता रहे हो हर एक कैटेगरी में हर बार उन्होंने कोशिश किया कि वो कैटेगरी के रूल्स चेंज करते जाए, ईजी पे ईजी होता गया ताकि जितने ज़्यादा लोग क्वालिफाई हो सके उतने ज़्यादा क्वालिफाई हो। बिल्कुल। जिवें असीं गल कर रहे सीगे कि पैंडेमिक तो लैके हुण तक कई फाइनैंशियल प्रोग्राम जिहड़े आ वो चलाए गए गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा वालों। स्टार्टिंग आपां गल करिए पहला सर्ब चलाया गया सीगा जी। बिल्कुल जी। कैनेडा एमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनीफिट, फिर EI चलाया गया, दोनों साइड बाय साइड चलते रहे और आई बिलीव 7 पेमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ 2000 ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ 14000 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। बिल्कुल जी। जब हम सबको लग रहा था कि सर्ब अभी ख़त्म हो गया है तो अभी नया क्या होगा, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद सर्ब एक्सटेंड हो जाएगा या एक 1 मंथ की एक्सटेंशन मिलेगी या ऐसा कुछ सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उन्होंने बेनिफिट्स और बढ़ा दिए हैं। उन्होंने 3 न्यू बेनिफिट्स अनाउंस किए। एक बेनिफिट उन्होंने अनाउंस किया CRCB है, लाइक कनेडियन रिकवरी केयर गिवर बेनिफिट है। एक CRSB है विच इज़ कैनेडियन रिकवरी सिकनेस बेनिफिट है और एक CRB है
कनेडियन रिकवरी बेनिफिट है। 3 बेनिफिट्स में अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया उन्होंने सबको कवर अप किया है। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ CRB ਦੀ, ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, राइट। ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। जी इसमें अमाउंट तो $500 अ वीक ही है बेनिफिट, और ये अवेलेबल अभी जो ये ओपन होगी इसकी एप्लीकेशन अक्टूबर 12 को। ठीक है जी। ये एप्लीकेशन वैलिड सितंबर से कवर करेंगे, जहाँ से CERB बंद हुआ था बिल्कुल वहाँ से कवर अप होगी सितंबर 25, 2021 तक, यानी कि पूरे साल की बेनिफिट कवर होगी। क्या बात है। उस पीरियड में जो EI नहीं अप्लाई कर पा रहे, जो EI के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सर CRB अप्लाई करेंगे। उसके अलावा ऐसा है कि अगर आपकी COVID-19 की वजह से आपका जॉब लॉस है, चाहे आप एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिल्कुल, और आप जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, आप घर पर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एक और भी चीज़ है इसमें जो उन्होंने क्राइटेरिया रखी है कि अगर आपकी इनकम $1,000 भी हो पर मंथ या उससे कम हो, फिर भी आप एलिजिबल हो इस बेनिफिट को अप्लाई करने। ठीक है। और अगर इस बेनीफिट की गल करिए, एक कितना लंबा समा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ टोटल अमाउंट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ साल ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ है। अब मैक्सिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि $26,000 मिलेंगे। ठीक है। जो उन्होंने क्राइटेरिया बताई कि $26,000 आपको इसके बेनिफिट पे मिल सकता है। अगर आपकी इनकम $1,000 पर मंथ है तो 12,000 आप उसके थ्रू कमा सकते हो, तो आपकी जो टोटल इनकम है वो 38,000 तक रीच कर सकती है। बट अगर वो $36,000 एक्सीड करेगी तो उस पर आपको गवर्नमेंट 50% चार्ज करेगी। ठीक है जी। जो भी अमाउंट आपका एक्सीड करेगा 38,000 से, वरना आपको फुल 1 ईयर के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपके पास जॉब नहीं है COVID-19 की वजह से, और मैक्सिमम इनकम आपका 1,000 एंड बिलो है। ठीक है। और ये ਜਿਹੜਾ CRB प्रोग्राम की गल कर रहे हैं ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी हमारी मेन जो उनकी एलिजिबिलिटी यही थी कि आपका जॉब लॉस है, आप जॉब पे नहीं जा रहे हो COVID-19 की वजह से, 15 इयर्स इन अबव है, आपकी 5,000 से मोर इनकम है इन 2019 और इन द लास्ट 12 मंथ्स। ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो देखने वाली कि आपकी इनकम होनी चाहिए कि आपकी 5,000 की इनकम है। इसकी एलिजिबिलिटी के साथ उन्होंने एक चीज़ और चेंज कर दी, उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस। बिल्कुल। एप्लीकेशन प्रोसेस पहले ऑटोमेटेड सिस्टम था कि फ़ोन पे ही हो सकता था, आप फ़ोन करो, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, आप जवाब दोगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अभी भी ऑटोमेटेड सिस्टम ऑन है, बट वो हर बार जब आप कॉल करके देखोगे तो वो यही बोलते हैं कि अब ये बंद होने वाला है, आपकी MyCRA अकाउंट होनी चाहिए। मे भी शायद फर्स्ट बेनिफिट अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद वो अकाउंट ऑनलाइन फ़ोन पे नहीं चलेगा, आपके पास MyCRA अकाउंट मैंडेटरी होना चाहिए ये बेनिफिट अप्लाई। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ CRA ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ। बिल्कुल जी। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕत ना आवे। बिकॉज आपको भी जैसे पता है कि CRA अकाउंट जब आप बनाने जाते हो तो एक सिक्योरिटी कोड आता है। बिल्कुल। वो कोड आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि अगर तो आपको पैसे की और बेनिफिट की ज़रूरत आ जाए उसमें 15 डेज़ का डिले होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए वो बार बार बोले आप बना करके रेडी रहो, जब अवेलेबल होगे, जब आप एलिजिबल हो गए आप अप्लाई कर लेना। ਸੋ ਜਿਹੜਾ CRB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? बिल्कुल जी। सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड जो EI नहीं अप्लाई कर पा रहे, और सेल्फ एम्प्लॉयड जिनके पास काम नहीं है बिकॉज ऑफ COVID-19 वो अप्लाई कर सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਕਨੈਸ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ। केयर गिविंग बेनिफिट। हाँ जी। सो इन्हां दोनों दे विच अंतर की ने, कौन कौन एलिजिबल आ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ बेनिफिट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ? हम सिकनेस बेनिफिट पे वो गवर्नमेंट ने, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। अब
कोई कोविड-19 का टेस्ट करवा रहा है या वो आइसोलेटेड है या ट्रैवल करके आए हैं या फिर 14 डेज़ के लिए काम नहीं कर सक रहेंगे या कोविड-19 है उनको, तो वो अप टू 2 वीक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं $500 अ वीक। ठीक है जी। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने इसको भी कवर कर दिया कि कहीं आपकी तबीयत ख़राब हो गई है किसी वजह से रिलेटेड टू कोविड-19, आप घर बैठोगे बट ये नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो भी कवर अप है। केयर गिवर बेनिफिट में अगर आपके कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है जो बिलो 12 ईयर्स है, जिसकी देखभाल के लिए आप घर पे आपको रहना है और आप अगर आप काम पे नहीं जा सक रहे हो तो $500 अ वीक आपको मिलेंगे, बट दैट इज़ अप टू 26 वीक्स। या तो घर पे कोई डिसेबल है, कोई पेरेंट है या जो डिसेबल है जिसके लिए आपको वहाँ केयर गिवर के लिए रहना पड़ेगा और काम पे नहीं जा सकते, हाँ जी, तो भी आप ये बेनिफिट अप्लाई कर सकते। ठीक है जी। ਲਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। बिल्कुल जी। हमारी कंपनी का नाम है ट्रस्टेड अकाउंटिंग एंड टैक्स सर्विसेज। हमारा फ़ोन नंबर है 7802171717 7802171717। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵੀ ਗਿਡਵਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਵੀ ਗਿਡਵਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਓ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਮਟਡ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? आप बच्चे और पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। अगर पेरेंट्स डिसेबल हैं या वो किसी वजह से उनको हेल्प की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, तो ये एलिजिबिलिटी उनके लिए भी है। और बच्चे के लिए तो अंडर 12 ईयर्स है और अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, डे केयर नहीं जा रहे हैं, तो वो ये उस वजह से भी क्लेम कर सकता है। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ? अप टू 26 वीक्स। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ CRA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? CRA की वेबसाइट पे माई अकाउंट पे अप्लाई हो जाएगी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। जी ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ TDS, जी बिल्कुल ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ। बिल्कुल जी। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? सबसे अच्छी बात है कि पहले सबके क्वेश्चंस थे कि टैक्सेस कितना होगा इस बिल्कुल। पीरियड में, बिकॉज बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं हमें जी, बट ये नहीं था कि एंड ऑफ द ईयर में अगर पे करना पड़े तो कैसा। तो गवर्नमेंट उन्होंने इसको भी इन्वेंट किया, जो बहुत ही अच्छा किया कि 10% ऑफ द अमाउंट वो काट के देंगे। ठीक है जी। राइट। तो जैसे किसी की बेनिफिट $500 अ वीक है, उनको $450 मिल जाएगा, $50 ऑलरेडी टैक्स कट जाएगा। बिल्कुल। इससे आपको एंड ऑफ द ईयर पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी की भी टेंशन नहीं होगी। तो जितने पैसे आपको आए उतने यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चंगा इनिशिएटिव है जी एक फेडरल गवर्नमेंट का, राइट? बिल्कुल जी, क्योंकि अगर ये इनिशिएटिव नहीं होता तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वो टैक्स लाइबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती, बहुत बढ़ जाती और औखा होना सीगा आम कैनेडियंस दे लिए। बिल्कुल जी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये बेनिफिट्स उन्हीं के लिए जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी प्रॉब्लम्स है, जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, काम की इश्यूज़ है, काम नहीं मिल रहे और हेल्थ इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, अब उनके लिए उस पीरियड में अगर आप ये कहो कि $3000 टैक्स पे करने या 4000 पे करने, तो वो डिफ़िकल्टी हो जाती है। अगर पहले ही वो टैक्स कट जाएगा तो इट्स मच मोर ईजियर, हेल्प हो जाती है। जिवें आपां गल कर रहे सीगे जी हुणे TDS दी, हाँ जी, एक जनरल क्वेश्चन आ, सारे अपने जिहड़े व्यूअर्स ने कई वारी सानू फीडबैक दिंदे ने, क्वेश्चन पुछदे ने कि जिहड़ा हुण तक असीं सर्व दे अंडर या EI दे अंडर बेनीफिट लै चुके हैं लगभग $14000 दा, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ टैक्सेशन ਦਾ ब्रैकेट कितना का? सर्व की टैक्सेशन की ब्रैकेट हाँ तक वो बता रहे इज अप टू 25%। ठीक है जी, कि आपको 25% तक आपकी जो भी अमाउंट आपको सर्व मिला है उसको आप अलग करके रख लें, बिकॉज वो पे करना पड़ सकता है। बिल्कुल। अगेन हर किसी की टैक्स ब्रैकेट अलग है, तो हर किसी का टैक्सेस एट द एंड ऑफ द डे अलग ही काउंट होगा, बट ऑन एन एवरेज अप टू 25%। ठीक है जी। हाँ जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ EI ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ EMPLOYEE ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ
EMPLOYEE ਦਾ ਰੈਕਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ प्रोसीजर के सेम प्रोसीजर ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? वो प्रोसीजर तो सेम है, बेनिफिट की एप्लीकेशन EI एप्लीकेशन सेम है, प्रोसीजर सेम है, बट वो एक चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि आपकी रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन फाइल है। बिल्कुल। अगर रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन फाइल नहीं होता है तो वो कॉल करके या जो क्लेम कर रहा है या तो एम्प्लॉयर को कॉल करके वो वेरीफाई करते हैं कि ये रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, बिकॉज अगर उनके पास नहीं होगा तो वो बेनिफिट कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। सो इट इज़ मैंडेटरी कि रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ हो ताकि EI में कोई इंटरप्शन ना हो और डबल चेक हो जाता भी वाकई ये जो पर्सन आ ये एलिजिबल हैगा इस एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि जब आप EI अप्लाई करते हो वो भी है कि आप जो जो इन्फॉर्मेशन भरते हो वो रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होता है, तो वो रिकनसाइल मैच हो जाता है जी। एक ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ EI ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CRA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ EI ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਮਾਊਂਟਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 2 ਤੇ 2 $4,000। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਕੀ प्रोसीजर ਆ ਉਹਦਾ? जैसे कि सर्व एंड EI आप बोल रहे थे, अब हाँ जी, जो EI के लिए एलिजिबल थे वो सर्व के लिए तो थे ही नहीं, राइट? बिल्कुल। तो सर्व को रिफंड करने के लिए तो CRA ने बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी ऑप्शन बनाई है कि आप अपना माई CRA अकाउंट में जाएं, वहाँ ऑप्शन है प्रोसीड टू पे। बिल्कुल। आप उसमें क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट लिंक होगा, ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। सर्व की पेमेंट इज वेरी सिंपल टू पे। EI की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाती है कि अगर किसी को EI बेनिफिट मिल गया है और वो पीरियड में भी उन्होंने काम कर लिया है, बिल्कुल, 2-3 ऑप्शन से पे करने के, ऑनलाइन ऑप्शन से पे करने के, सर्विस कनाडा को आप खुद कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो दिस इज एडिशनली पेड। आप चेक से उनको रिफंड कर सकते हो, लाइक अ रिफंड ऑफ द पेमेंट, या वो आपको खुद वाउचर भेज सकते हैं कि दिस इज द अमाउंट, क्योंकि आप उनको इन्फॉर्म करोगे तो वो राइट अवे एक्शन लेके प्रोसीड करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप नहीं करोगे उनको मालूम तो पड़ जाना है, बिकॉज वो आज नहीं हो, मे भी शायद 1 साल बाद वो रिकनसाइल हो जाती है अकाउंट सारी, क्योंकि जब वो देखते हैं कि आप एक न्यू एम्प्लॉयमेंट में इस डेट से स्टार्ट हुई और EI उस पीरियड में भी कि प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से ले रहे हो, तब आपको पेनल्टी के साथ रिफंड करना पड़ता है, और वो पेनल्टी होती है 50%। वाह, वेरी ह्यूज। तो अगर देर इज़ एन अमाउंट जो आपको मालूम है एंड आपको लगता है कि डुप्लीकेट आ गया, जो बहुत लोगों के साथ हुआ है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बिकॉज जब वो प्रोसेस शुरू हुआ था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था एंड साथ साथ बहुत कंफ्यूजिंग भी था कि कौन सा पहले आएगा, सबको बेनिफिट थी, तो विच इज़ फाइन, बट आप उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। जिवें तुसीं गल कर रहे ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦਰ CRA ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CRA ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ EI ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ? एज पर जो न्यूज़ हम भी देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रॉड में आ जाता है। हाँ जी। अगर आप एलिजिबल नहीं हो, फ्रॉड की पेनल्टी अमाउंट भी हाई हो सकती है, हाई भी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो खुद इसको खुद रिव्यू करेंगे और ऑडिट करेंगे। बिल्कुल। नॉट नेसेसरी अभी 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद, बट अगर आप एलिजिबल नहीं हो और वो क्राइटेरिया में नहीं हो, अभी भी ऑप्शन है, आप प्रोसीड करके पे कर सकते हो आप। बिल्कुल। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। बिल्कुल जी। हमारी ऑफिस ट्रस्टेड अकाउंटिंग एंड टैक्स सर्विसेज, हमारा फ़ोन नंबर 7802171717, 7802171717। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਜਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 30 ਸੀਗੀ। बिल्कुल जी। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बिल्कुल जी। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨल्टी ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? पेनल्टीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर फाइल हो गई तो इंटरेस्ट क्या चार्जेस है आफ्टर सितंबर 30। बट अब उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उन्होंने इस पेमेंट को तो एक्सटेंड नहीं किया है कि आप की डेट एक्सटेंड कर दिया है कि आप पे कर सको, बट अगर आपकी इंटरेस्ट बहुत हाई है, जितनी की भी हमारी डीलिंग CRA से अभी तक हुई है, जितने भी फाइल्स में हम वेवर्स अप्लाई कर सकते हैं कि ये सिचुएशन है, $100 भी बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, डेफिनेटली, राइट। तो वो वेवर्स अप्लाई करने में, और वो बहुत ही अकोमोडेटिंग है, और वो वेव बहुत बार कर देते हैं। आई एम श्योर क्लाइंट्स के लिए इस बार भी कर देंगे कोई, क्योंकि इस सिचुएशन में सभी हेल्प कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट तो सबसे ज़्यादा ही हेल्प कर रही है। सो आई थिंक अगर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और अमाउंट नहीं कर रहे हैं, आप उनको कॉल करके इंस्टॉलमेंट सेटअप कर सकते हैं एंड देन इंटरेस्ट वेवर्ड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਵੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। हाँ जी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? अपडेट जी, इम्पॉर्टेंट सबसे यही है कि कोई भी बेनिफिट हम अप्लाई करें, मेक श्योर हम ये ज़रूर फाइंड आउट कर ले कि आप एलिजिबल हो, बिल्कुल, और कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहोगे और आपको नहीं पता है कि एलिजिबिलिटी नहीं थी, आप फिर भी एक्सीडेंटली बेनिफिट लेते रहोगे, फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल। सो इससे बेटर है कि आप पहले कंसल्ट कर लें और फिर अप्लाई करें, तो उससे ज़्यादा ही बेटर होगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਟਰਸਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਵੀ ਗਿਡਵਾਣੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।